Good morning, dear students. Today we will start a new chapter, that is insight into program execution. Now we know that programmers write programs in a specific programming language such as C, C++, Python, but computer cannot directly understand that language because computer only understand the machine language. Now, to execute a program, it is important that the program code must be converted into computer understandable language. Okay, so this is the responsibility of compiler or interpreter. Now this is the basic flow of compilation. This is a program, or we can say source code, the code that we write in our for any particular program is known as source code. Now what first thing happen, this source code will be converted into a binary code, and after converting that code in binary, this code will be executed. Okay, first source code will converted into binary code, and then this binary code will be executed because com computer only understand the binary language, so it is capable to execute only the binary code, not source code. Okay, so first of all you have to convert the source code into binary code, and after that that particular binary code will be executed. And here translation takes place. Here our compiler and interpreter work because both convert the source code into a binary code. Okay, and execution is a part of CPU. Now, what do you mean by source code? Source code refers to the original code written in a programming language by a programmer. The code that you write in Python, Python ideally, that code is a source code. Means you write a equals to 10, b equals to 5, c equals to a plus b, print c. That code is called source code that you write, that a programmer write. That code is known as source code. Now machine code, after what compiler or interpreter convert the source code into a machine readable code, that code is called machine code or binary code. Machine code refers to the code converted into computer understandable form that a computer can understand and can directly execute. Okay. Now we know that the special software that translate the source code into machine understandable code as the translator software or simply the translators. ठीक है. तो then compiler and interpreter both are known as translator because वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं सोर्स लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में. ओके, तो दोनों का काम है. और दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं. अब हाउ कंपाइलर वर्क्स. अब कंपाइलर जो है वो वर्क कैसे करता है. नाउ कंपाइलर जो वर्क करता है, आपके ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है कंपाइलर प्रोसेस. कंपाइलर टेक द सोर्स कोड एंड देन फॉलो सर्टेन स्टेप्स टू प्रोड्यूस द लो लेवल कोड. लो लेवल कोड को ही हम क्या बोलते हैं, मशीन डिपेंडेंट कोड होता है. वो आपका जो लो लेवल कोड होता है मशीन डिपेंडेंट होता है, जो हाई लेवल कोड होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है. The major steps in compilation process are listed below. तो जो कंपाइलर है वो आपके 4 प्रोसेस में काम करता है. प्री प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन, उस कंपाइलेशन के अंदर भी 2 स्टेप है, देन असेंबली, देन लिंकिंग. ठीक है, एक और स्टेप होता है लोडिंग. तो टोटल 5 स्टेप्स में काम होता है. तो पहला जो स्टेप है वो है प्री प्रोसेसिंग फेज. प्री प्रोसेसिंग फेज में क्या होता है कि it removes extras. Pre-processing phase remove extras from source code and add all that is to be added, expanded, so that code is completely ready for the next phase. For example, comments. Now अब pre-processing phase में क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसमें से जो भी एक्स्ट्रा कोड है, जैसे कमेंट्स जो हम लिखते हैं वो एक्स्ट्रा है, वो क्या करेगा, उन कमेंट्स को रिमूव करेगा. इट विल रिमूव दी कमेंट्स और इट विल ऐड दैट पर्टिकुलर कोड दैट इज नीड टू बी एडेड. अब जैसे कि हमें क्या करना है, हमने एक प्रोग्राम बनाया है किसी भी नंबर का स्क्वायर बनाने के लिए. ठीक है, अब जैसे कि हमने, अगर मैं यहाँ पर अपना आइडियली स्टार्ट कर दूं, मैं आपको बता दूं,
फाइल। एक फंक्शन होता है मैथ डॉट SQRT, और जो भी नंबर आप यहां पर लिखोगे उसका वो क्या करता है, आपका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करता है। बट यहां पर आप जब इसको रन करोगे देन इट विल गिव अस द एरर, वो बोलेगा कि मैथ इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक पहले एक छोटी सी लाइन लिखूंगा, इंपोर्ट मैथ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। आई होप कि ये मुझे कुछ रिजल्ट देगा। रिजल्ट इसने मुझे इसलिए नहीं दिया बिकॉज मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट देना है, प्रिंट मैथ डॉट SQRT. Okay, now when I run, I hope it will be correct now. It will give the result 5. Now यहाँ पर स्टूडेंट क्या हुआ कि ये जो मैथ फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, अब प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे क्या होगा, देखो उसको पता ही नहीं है, अगर मैंने ये लाइन नहीं लिखी होती यहाँ पर तो वो एरर उसने शो किया, बिकॉज उसे पता ही नहीं था कि ये मैथ और ये SQRT है क्या। और ये मैथ और जो SQRT की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर स्टोर है, इस इंपोर्ट मैथ में स्टोर है। तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री प्रोसेसिंग फेज में जो मैथ मॉड्यूल जो ऑलरेडी बना हुआ है उस मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके लेके आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रोग्राम में पहले प्री प्रोसेसिंग फेज में क्या हुआ है कि मैथ मॉड्यूल आपका ऐड हुआ है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो कमेंट जो होंगे वो उसको रिमूव कर देंगे, और जो मॉड्यूल जो इंपोर्टेड हुए हैं ना प्रोग्राम में उनको क्या किया जाएगा, ऐड करेंगे। So at the end of that phase, the source code is converted to just a complete code that has nothing extra and nothing yet to be added. तो जितना भी जो at the end में प्री प्रोसेसिंग फेज में क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा कोड होगा वो रिमूव हो जाएगा, और जितना भी कोड रिक्वायरमेंट होगा वो आपका ऐड होगा। इसके बाद ना तो हम कुछ इसमें ऐड करेंगे ना ही इसमें क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इस तरह से। बाकी लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस में क्या होती है, हेडर फाइल्स होती है। ठीक है, तो वो हेडर फाइल्स को भी क्या करता है, वहां पर वो इंक्लूड करता है अगर वो प्री प्रोसेसिंग फेज होगा। बट पाइथन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहां पर आपको हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट देखने को यहाँ पर नहीं मिलता। बट सी प्लस प्लस अब में आपको क्या मिलता है, वहां पर हेडर फाइल लिखती है stdio.h ponio.h, उनको भी क्या करता है, वहां पर वो कैरी करता है प्री प्रोसेसिंग फेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ पर जो कोड है वो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया होता है प्री प्रोसेसिंग फेज के बाद, बस उसमें जितने भी कोड मुझे ऐड करने, एक कंप्लीट प्रोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रोग्राम है। देखो, एक मैथ का अलग प्रोग्राम है, उस मैथ प्रोग्राम के अंदर हमने SQRT फंक्शन की वर्किंग को डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रोग्राम है, एक मैथ प्रोग्राम अलग मेरे कंप्यूटर में स्टोर है, और एक प्रोग्राम तो मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब भी प्रोग्राम रन हो रहा है तो दो प्रोग्राम आपस में कंबाइन होकर एक प्रोग्राम बन रहे हैं। वो एक प्रोग्राम कौन सी फेज में बनेंगे, प्री प्रोसेसिंग फेज में बनेंगे। नाउ आई होप इट इज क्लियर। नाउ कंपाइलेशन फेज, यहाँ पर क्या होता है कि ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक है मेरा एनालिसिस और एक है आपका सिंथेसिस। अब जो एनालिसिस फेज है उसमें क्या है कि जो भी हमारे टोकन्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, इन सब में क्या होता है कि कंपाइलर क्या करता है, ठीक है, इन सब को के लिए एक सिंबल टेबल बनाता है, एक टेबल क्रिएट करता है। जितने भी मैंने ये आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, कीवर्ड यूज किए हैं उन सबको लेके एक टेबल बनाएगा, और उन टेबल्स में उनकी रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, सेव करेगा। तो वहां पर आपके दो फील्ड बनेंगे, एक आपके जिसमें सारे आइडेंटिफायर, कीवर्ड सब स्टोर होंगे, और सेकंड फील्ड में क्या होगा, उनकी रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, मेंशन करेगा। ठीक है, तो ये सब काम होगा कि एनालिसिस फेज में एक सिंबल टेबल बनती है जिसमें जितने भी हमारे आइडेंटिफायर, कीवर्ड होते हैं वो सब स्टोर होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट हमारी स्टोर होती है। इन द एनालिसिस फेज द कंपाइलर आइडेंटिफाई ऑल द टोकन्स ऑफ द सोर्स कोड एंड देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, किसकी फॉर्म में करेंगे, एक टेबल बनाता है, और इसको क्या बोलता है, फ्रंट एंड फेज भी बोला जाता है। और जो सिंथेसिस होता है इसको बैक एंड फेज होती है। अब ये क्या करेगा, ये भी जो भी मेरे सिंबल टेबल है,
सिंबल टेबल को किस में कन्वर्ट करेगा, आपका सिंटैक्स ट्री में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा कि जो बैकएंड फेज है जो क्या करेगा, द कोड ये जनरेट द सिंटैक्स ट्री एनालाइजिंग द सिंटैक्स ऑफ सोर्स कोड। तो सोर्स कोड का जो सिंटैक्स है उस सिंटैक्स के सोर्स कोड को एनालिसिस करेगा और एक क्या करेगा, एक सिंटैक्स ट्री को आपको डेवलप करके देगा। ट्री मतलब आपका एक हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो आप एक हायरार्की बनाते हो तो हायरार्की टाइप स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, आपका ट्री भी बोला जाता है। ठीक, तो ये दोनों काम होते हैं आपके एनालिसिस और सिंथेसिस फेज में। अब उसमें जो एनालिसिस फेज है उसको फ्रंट एंड फेज बोला जाता है और सिंथेसिस को बैक एंड फेज बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर यह है अब बैक एंड फेज ऑफ द कंपाइलर फेज द कोड and generate syntax tree, analyzing the syntax of the source code. A syntax tree is a tree representation of syntactic structure of source code। ठीक है, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स सिंबल टेबल कहाँ बनती है, एनालिसिस फेज पे बनती है। सिंटैक्स ट्री कहाँ पर बनता है, सिंथेसिस फेज में बनता है। इसको फ्रंट एंड फेज बोला जाता है, एनालिसिस को बोला जाता है और सिंथेसिस को क्या बोला जाता है, बैक एंड फेज बोला जाता है। तो काफी आपके वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। और इसके बाद देखना बोथ द phases of compilation, if the syntax and semantic rules of the programming language are found violated in source code, the compiler generates an error with the line number of the source code। अगर इन दोनों ही फेज में कोई एरर आती है तो क्या होगा, कंपाइलर एक एरर थ्रो करेगा विद द लाइन नंबर की कौन सी लाइन नंबर पे आपका एरर है। नाउ नेक्स्ट जो फेज है असेंबली फेज है। असेंबली फेज जो होता है ये क्या करता है, एक this phase receive the assembly level instruction and then converts it into object code। ठीक है, it which is in the form of machine code। this phase does the same work that the assembler does। ठीक, देखो अभी तक हमने दो ट्रांसलेटर पढ़े हैं, एक कंपाइलर पढ़ा है, एक इंटरप्रेटर पढ़ा है, तीसरा आपका कंपाइलर और होता है जिसको हम असेंबलर बोलते हैं। और असेंबलर क्या करता है कि एक जो असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि असेंबलर क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, जो भी कोड उसको मिल रहा है उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड में को कन्वर्ट कर रहा है। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, आपका एक मशीन कोड होता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगेन ट्रांसलेटर का ही काम कर रहा है यहाँ पर कि ये क्या कर रहा है कि किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मशीन कोड में ना कन्वर्ट करके एक इंटरमीडिएट कोड होता है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, मशीन कोड इज डिफरेंट। ठीक है, ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है जो कि इंटरमीडिएट कोड होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। नाउ नेक्स्ट इज लिंकिंग। लिंकिंग अब नेम ही बता रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिंकिंग की काम करते हैं। द ऑब्जेक्ट कोड रिसीव्ड बाय दिस फेज इज वेरी मच अ बाइनरी कोड। यहाँ पर जो उसको कोड मिलेगा वो बाइनरी कोड होता है, बट कंप्यूटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट बिकॉज लिंकिंग इज इम्पोर्टेंट ऑफ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज येट टू बी डन। यहाँ पर क्या होंगे, जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज को लिंक करने का काम है वो काम यहाँ पर होगा। दिस फेज डज इट। द पार्ट ऑफ द कंपाइलर विच परफॉर्म द लिंकिंग ऑफ लाइब्रेरीज कॉल्ड लिंकर। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना काम हो रहा है कि लाइब्रेरीज को लिंक करने का काम हो रहा है। और लाइब्रेरीज भी क्या होती हैं, प्रोग्राम्स ही होते हैं। अब यहाँ पर लाइब्रेरीज का मीन्स क्या है, जैसे आपने प्रिंट यूज करते हैं, आप इनपुट कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रिंट का एक्चुअल में क्या मीनिंग है, इनपुट का एक्चुअल में क्या मीनिंग है, ये कहाँ पर स्टोर है, ये किसी लाइब्रेरी में ही तो स्टोर है, वरना हमारे हमारे प्रोग्राम को कैसे पता चल रहा है कि प्रिंट का मतलब प्रिंट ही है, इनपुट का मतलब इनपुट ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लाइब्रेरीज में स्टोर है। और यहाँ पर क्या होता है, वो लिंकिंग का काम होता है उन लाइब्रेरीज से। एंड लोडर, लोडर का सिंपली काम है कि हमारे जो प्रोग्राम है उसको मेमोरी को में लोड करना। लोडर इज अ पार्ट ऑफ कंपाइलर दैट लोड द कंप्यूटर एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू मेमोरी। अब यहाँ पर जो लिंकिंग के बाद हमारी जो पूरी जो फाइल है वो क्या है, एग्जीक्यूट के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, एग्जीक्यूशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। अब लोडर क्या करेगा, उसको मेमोरी पे लोड करेगा फॉर एग्जीक्यूशन। अब जब वो मेमोरी पे लोड हो जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए तो हमारा जो सीपीयू उसको लोड आपको क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपकी कंपाइलर की सारी फेज खत्म होती हैं। ये मेरा सोर्स कोड है और यहाँ से यहाँ तक कंपाइलर काम करता है एक्जी कोड में कन्वर्ट करने तक। पहले एनालिसिस फेज यहाँ पर आई, सिंथेसिस आई,
फिर यहाँ पर असेंबली का रोल आया थोड़ा बहुत। असेंबली ने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया। फिर लिंकर ने क्या किया, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, यूजर लाइब्रेरी प्लस ऑब्जेक्ट कोड सबको लिंक किया यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड उसको यहाँ से मिला, तुमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज और यूजर लाइब्रेरी को लिंक किया, और लिंक करने के बाद लोडर ने इसको लोड किया और उसको लास्ट में क्या किया, exe फाइल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर इज नॉट needed to run the executable file, it is just required for the compilation process। यहाँ पर मैं आपको बता चुका है कि जो एग्जीक्यूशन का काम है वो कंपाइलर नहीं कर रहा, एग्जीक्यूशन का काम सीपीयू करेगा। बस वो क्या करेगा, उसको मशीन हमारे सीपीयू को उस कोड में कन्वर्ट करके दे देगा जो मेरा सीपीयू अंडरस्टैंड कर ले। यहाँ तक का काम क्या है, कंपाइलर का है, उसका काम एग्जीक्यूट करना नहीं। ठीक है, so student, that's it for today. In next class we will learn how interpreter works. Okay, thank you.